میں ایک عمل بتاتا ہوں، میں نے اس عمل کے ذریعے مالدار ہوتے دیکھے، جاگیردار ہوتے دیکھے، سکندر اعظم بنتے دیکھے اس عمل کے ذریعے۔ آج تو بیٹھے بیٹھے آپ کا ساتھ ساتھ علاج بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ بندشیں بھی ٹوٹ رہی ہیں، ساتھ ساتھ ناکامیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ اور پھر کہہ رہا ہوں، محبت اور پیار سے آپ بیٹھے ہیں، جذبے سے بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹھنے سے اللہ مضامین مجھ پہ جاری کر رہا ہے، مضامین۔ اب ایک عمل اور بتاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں چلتے چلتے زندگی کی خبر نہیں، تو فقیر ہے ہمیں کوئی چیز دے کے جا، ایسی چیز دے کے جا جو اللہ سے مانگے منوائیں۔ بیٹیوں کا رشتہ ہے، اولاد کے رشتے ہیں، کوئی گھر ہے، کچھ سواری ہے، کوئی جاب ہے، یا جاب میں کامیابی ہے، یا کامیابیوں سے اگلی کامیابی ہے، یا ناکامیوں سے نکلنا چاہتا ہوں، یا حالات کی بندش اور گردش کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، کوئی ایک عمل دیتے جائیں۔ آئیں سنیں، ایک عمل دے رہا ہوں۔ 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں یا ایک بار؟ کتنی دفعہ؟ سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھیں یا ایک بار پڑھیں؟ اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سورۃ فاتحہ جب پڑھیں، پہلے فرمان سن لیں۔ سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ سارے قرآن کی زیر زبر سورت، قرآن کی 114، قرآن کے رکوع، قرآن کی منزلیں، قرآن کی آیات، جو سارے قرآن میں ہے وہ کس میں ہے؟ اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ مولا بندہ تیرا، غلام تیرا، بندہ تیرا، غلام تیرا، مجبور تیرا، ماتحت تیرا، پھر در کسی اور کا، پھر اپنے در سے نہ ہٹا۔ مولا مجھے در در کا غلام نہ بنا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے۔ اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ مولا پھر اپنے در کا غلام بنا۔ ایاک نعبد، آپ نے ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، صبح جب بھی اٹھیں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورۃ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے نہیں پڑھنا، یہ غور طلب بات ہے، بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 دن وضو بے وضو، لمحہ با لمحہ، ساتھ با ساتھ، ہر حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، حالات کی سختیاں، تلخیاں، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ آئیں ہم بیٹھ کے، اگر آپ جذبے کے ساتھ بآواز بلند، جذبے کے ساتھ بآواز بلند، جذبے کے ساتھ بآواز بلند میرے ساتھ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ توجہ سے پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ بس سخی کے دروازوں میں ایک دفعہ کٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر کٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر آخرکار سخی کہے گا دیکھو تو صحیح کون مجبور بے بس ہے جو بار بار میرا دروازہ کٹکھٹا رہا ہے۔ یہ سخی کے دروازے کو دستک دینا ہے، سخی کے دروازے کو آوازیں دینا ہے، سخی کے دروازے کو، اور سخی کو فریادیں کرنا ہے۔ اور وہ شہنشاہ سخی ہے جو پل میں سنتا ہے، ایک پل میں راضی ہو جاتا ہے، ایک پل میں ناراضیاں ختم کر دیتا ہے۔ میں دنیا کے سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا، میرے پاس ایک صاحب ہے، شراب پی پی کے نا اس کے ہونٹ یہ جلے ہوئے تھے، ہونٹ نا، بعض لوگ سگریٹ اتنا پیتے ہیں ہونٹوں پہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو اس کے شراب پینے کا ہونٹ جلے ہوئے تھے۔ میرے پاس آیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی شرابوں میں گزری ہے، شراب کے علاوہ جو بھی شراب کے ساتھ ہے اسی میں گزری ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے بخشنا ہے، مجھے پتا نہیں وہ کتنا بڑا کریم ہے۔ میں نے یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دوں۔ میں نے کہا ایسا کرو، یہی عمل کرو۔ کہنے لگا نہیں زیادہ نہیں کر سکوں گا۔ میں کہا جتنا ہے کر لوں، لیکن اس نے زیادہ کیا۔ قدرت کا نظام دیکھیں، کچھ عرصے بعد بیمار ہو گیا۔ اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا، بابا تھا، اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا، بہت بڑا چودھری تھا، قوم کا جٹ تھا، چودھری تھا، بڑا دبنگ آدمی تھا، بندوں کو سیدھا کروا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ بیمار ہو گیا، نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے۔
कई दिन वहां दाखिल रहा और ये वजीफा ना छोड़ा। कहने लगा मुझे मस्जिद में ले चलो, मेरा दिल कहता है मुझे मस्जिद में ले चलो। मस्जिद में गया, नमाज का वक्त नहीं था, मेहराब में चला गया। मेहराब में जाकर ऐसे सजदे में गिर गया और सजदे में गिर के जोर जोर से पढ़ने लगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु। फिर उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई और कुछ देर के बाद आवाज खत्म हो गई। देखा तो अल्लाह की अमानत अल्लाह के पास चली गई। मैंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने वालों के खात्मे ईमान पे देखे। कितना बड़ा मुजरिम है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ना बंदे को अपनी कुदरत की गोद में बिठाता है, ऐसे हाथ में फेरता है, शिकवा करता है। इस आयत की मैं तर्जुमा बता रहा हूं, मफहूम आशाना मफहूम बता रहा हूं। ऐसे हाथ भी फेरता है और शिकवा भी करता है और कहता है मुझ करीम से दूर हो गया था, आ गया है, रंग दूंगा, अता कर दूंगा, मसले हल कर दूंगा। बख्शिश मांगता है वो भी दे दूंगा। मैंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने वालों को एक खात्मे ईमान पे देखे। मेरे पास वाकयात ही वाकयात हैं। 1984 में मैंने इस शोबे में कदम रखा। 1984 में मेरे मुर्शिद ने पकड़ के कहां मैं मेडिकल की दुनिया का, कहां किताबें और कहां आज भी पकड़ के ये रूप दे दिया। हाफिज नहीं हूं, आलिम नहीं हूं, कारी नहीं हूं, न एक दिन मदरसे में पढ़ा हूं, इसलिए मदरसे वालों को साथ सलाम और एहतराम करता हूं नहीं हूं। मैं जिंदगी की पढ़ी दूसरी तालीम पर ये यकीन जानिए, मैंने जिसको बताया और उसने पढ़ा, मसले हल तो होते होते देखे ना, मुश्किलें हल तो होती देखी, पर इस मसले इस वजीफे की बरकत से खात्मे बिल खैर देखे। मैं एक दरवेश के पास गया। दरवेश इसलिए कह रहा हूं, वो खुद फकीर आदमी, गरीब आदमी थे। उनके घर में बल्ब था, एक बांस के साथ ना एक बल्ब बांधा हुआ था। वो पहले लाल बल्ब आता था, ये मरकरी आज के बाद, ये एलईडी को कौन सी लाइटें हैं आजकल, एलईडी वगैरह नहीं, उस लाल बल्ब होता था 100 वाट का, वो बांस के साथ बंधा हुआ था। शाम मगरिब के बाद मैं गया, गर्मियों के थे, नीचे जाय नमाज बिछाई हुई थी, साथ एक थाल पड़ा था, थाल उसमें मिट्टी थी हाजत के लिए, मिट्टी मुझे याद है। वो दरवेश रोटियां लगाता था और हर रोटी पे पड़ता था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे आज वाकया याद आया, मैं गया ना, मैंने कहा मैं दुआ कराने आया। मैं कहा बंदा अल्लाह के पास जा रहा है, तारीख से दुआ करा ले। गांव में गया, दूर कहीं, घर में गुर्बत, सख्त तंगदस्ती। मैं कहा मैं दुआ कराने आया। कह रहे आप पीर साहब हैं, आपसे तो लोग दुआ कराते हैं। मैं कहा नहीं, मैं दुआ कराने आया हूं, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। ऐसे हाथ उठाए, कहने लगे अल्लाह अभी मैं पाक हूं, बावजू हूं, रमजान का इंतजार कर रहा हूं, रमजान आने वाला है, इतना एक बंदा मुझसे दुआ कराने आया है। और दुआ पढ़ के ना करते रहे बातें, फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के विजदान में आ गए और मेरा दिल अंदर कह रहा था तारिक ये दुआएं अर्श को छू रही हैं और ये दुआएं कबूल हो रही हैं। और सच पूछे, जो उसने दुआएं मांगी सारी कबूल हुई। एक दफा सूरत फातिहा पढ़े, फिर अमल दोहरा रहा हूं, या 40 बार सूरत फातिहा पढ़े सुबह, और फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे जब पहुंचे आगे ना पढ़े, 16 दिन इस वजीफे को दोहराएं, 16 दिन दोहराएं, 16 दिन दोहराएं, इस वजीफे को 16 दिन दोहराएं, दिन रात दोहराएं। और जब सोने लगे फिर सूरत फातिहा पूरी करके दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाएं। चंद दिन चंद हफ्ते तो करके देखें। और अगर एक और तोहफा भी लेना चाहते हैं वो भी दे देता हूं। अय्याम 20 समंदर के किनारे आप बैठे हैं, 13, 14, 15 चांद की इस्लामी महीने की 13, 14 और 15, इसमें समंदर के क्या हालात होते हैं, समंदर कितनी मौजों पे होता है। और पूरी दुनिया में क्राइम रेट, जराइम की दुनिया में साइंस कहती है, उठाओ नेट की दुनिया, मेरी बात की तस्दीक करो, पूरी दुनिया में क्राइम रेट, जराइम की दुनिया 3 दिनों में बढ़ जाती है। 13, 14, 15 गारत, डकैतियां, हालात, सख्तियां इन 3 दिनों में बढ़ जाती है। पूरी दुनिया की रिसर्च है, अल्लाह का निजाम। मेरे कमली वाले ने क्या फरमाया, इन 3 दिनों में रोजे रख ले। उन्हें उन रोजों को कहते हैं, हदीस में उनके अल्फाज हैं अय्याम 20, अय्याम 20 के रोजे। मैं एक अमल बताता हूं, मैंने इस अमल के जरिए मालदार होते देखे, जागीरदार होते देखे, सिकंदर आजम बनते देखे। इस अमल के जरिए 3 दिन रोजा रख, रात को सारी रात सूरत फातिहा पढ़, नंगे सर नंगा आसमान,
अगर नंगे सर नहीं है, नंगा सर तो कर ले, नंगा आसमान नहीं है, ऐसी जगह तेरा घर ही ऐसा है, नंगे आसमान की नियत कर, सारी रात चलते हुए। अगर हाजत है हाजत कर ले, वुजू टूटा है वुजू कर ले, खाना पीना है खा पी सकता है, थक गया है बैठ भी सकता है, लेकिन सूरत फातिहा पढ़ना ना छोड़। फजर की नमाज पढ़ जमात से, फिर चाहे सो जा। 3 रातें फातिहा बिलाते दात के जितनी ज्यादा पढ़ ले, सैकड़ों हजारों, और दिन को रोजा। सिर्फ महीने में 3 रातें, चंद महीनों में आंखों से कुदरत के फैसले देख। कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, तू कहता है तूफान ही तूफान है, मेरी कश्ती किनारे पे कहां लगेगी, रास्ते बंद हैं, राहें बंद हैं, मंजिलें मसदूद हैं, मेरे सब अब तो मौत ही मेरा फैसला करेगी। कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, न खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, वाए नाकामी तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू, नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा, मर्दानावार जी और मर्दानावार मर जा, दुनिया की रंज राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा। इस बहरे बेकरार में, इस बहरे बेकरार में साहिल की जुस्तजू क्या, कश्ती की आरज़ू क्या, तू बार बार कर जा। इया कना बदो, इया कना बदो, सारी तौहीद इसी में है, सारी अता इसी में है, सारी वफा इसी में है, सारी शफकत इसी में है, सारे करम और फैज के दरवाजे इसी में है। मैं ये बता रहा हूं आज 21-22 साल से, उठाओ मेरा रिकॉर्ड नेट की दुनिया में, जिंदगी हो गई इस अमल को बताते बताते। तो मैं कराची आने लगा तो मुझे किसी ने बताया कि अल्लाह के मेहमान आए हैं, तो मैंने कहा सुना है दरिया पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है, दरिया पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हुसूस इश्क से जां बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हुसूस इश्क से जां बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे। दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। अभी नींद आई है हुस्न को, अभी नींद आई है हुस्न को, कोई शोर करके जगा न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। नींद से मेरा ताल्लुक बरसों से नहीं है, ख्वाब आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं। न मैं जुगनू हूं, न दिया हूं, न मैं तारा हूं, रोशनी वाले मेरे नाम से चलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। इया का ना बदो, मैंने एक साहब मुझसे कहने लगे, मैंने आपसे पुरानी सूरत मुल्क का एक फायदा सुना था, मुझसे कहने लगे आपको सुना दूं, मैंने सुनाऊं। कहने लगे मैं फला जगह रहता हूं, 17 घंटे 18 घंटे 2-3 दिन लाइट होती ही नहीं है, मैं सुकून से सोता हूं, सारे बेसुकून होते हैं। कहने लगे एक दफा ऐसा हुआ कि मुझे ना जबरदस्ती उठाया, उठ। मैं क्यों हुआ, क्यों सो रहा था, नहीं समझे नहीं, मैं जल्दी में कोई बात कह गया, कहा मुझे जबरदस्ती उठाया, क्यों सो रहा है। मैं क्यों, क्या तो क्यों सो रहा है, हम लाइट नहीं है हम सो नहीं सकते, तो सो रहा है, उठ जल्दी कर। मैं उठा तो मैं पसीना पसीना था, पर मैं फिर लेटा, फिर नींद आ गई। कहा मेरे पास एक राज है नींद का, एक राज है नींद का, ये नींद का राज दुनिया बड़ी ढूंढती है। नींदें उड़ चुकी हैं, माल बहुत ज्यादा, दौलत बहुत ज्यादा, जहाज नेमतें बहुत ज्यादा, पर चैन अंदर का लुट गया है, सुकून लुट गया है। ये सुकून ना गोली में भी काम करना छोड़ दिया, और बेड ने भी, और एसी ने भी, और मखमल ने भी काम करना छोड़ दिया। अब उस नींद की गोली को मैं 1 मिनट में आपको बता, 1 पल में बता। नींद की गोली से पहले एक रिवायत बयान करूंगा, फिर नींद की गोली का राज बताऊंगा। हदीस में आता है, कुरान में एक सूरत है जो झगड़ालू है, वो सूरत मुल्क है, जो अल्लाह से झगड़ा करती है। या अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता था, या तो कुरान से निकाल दे, या फिर इसको जन्नत भेज दे, अजाब से निकाल दे। और हदीस का मफहूम है, सूरत मुल्क पढ़ने वाला कब्र में राहत और सुकून से सोएगा, कब्र में बिस्तर, मखमल, फरिश्ते, नेमतें सारी होंगी। ये बताएं, जो सूरत मरने के बाद की 100 साल की जिंदगी, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, अब्दुल आबाद की जिंदगी में सुकून दे सकती है, वो तुझे चंद घंटे का बिस्तर पे सुकून नहीं देगा। बोले बताएं, जो
कब्र में सुकून दे सकती है सूरत मुल्क, वो तुझे बिस्तर पे सुकून नहीं दे सकती। यही गोली है, यही राज है। सूरत मुल्क पढ़ के सो जाएं, फिर अपनी जिंदगी का चैन और सुकून देखें। और साथ असबाब भी 2-4 अख्तियार कर लें। असबाब भी, मेरे यहाँ हवेली में सिख हजरात, हिंदू हजरात, मुसलमान, क्रिश्चियन मेरे मेहमान होते हैं। रांझा सौदा सांझा फकीर के कशकोल के सारे फकीर के हैं। मेरे यहाँ सिख सरदार आए तो कहने लगे मैं रात जर्मनी से पहुंचा हूं, थका हुआ हूं। मैंने कहा सरदार जी आप ऐसा करें, आप पांव को, पिंडलियों को ना अच्छी तरह तेल की मालिश कर लें। 2-4 मिनट इस पांव को दे दें पिंडली को, 2-4 इस पिंडली पांव को दे दें, थोड़ा सा तेल नाक को लगा दें, थोड़ा सा नथनों को लगा दें, सो जाए। जब खाने का वक्त होगा मैं आपको उठा दूंगा। अच्छा, मैंने उसको सुला दिया, तेल लगा दिया उसने, सुला दिया। उसने अपने भतीजे को कहा ओए गुरमन इधर आ मुझे तेल लगा। उसका नाम गुरमन सिंह था। गुरमन इधर आ मुझे तेल लगा। अब गुरमन चाचे को तेल लगा रहा। चाचा सो गया। खाने का वक्त हो गया, सारे तैयार हो गए। सिख की तैयारी बड़ी मुश्किल होती है, उसने 4 कक्के भी करने होते हैं। एक कक्का कड़ा, दूसरा केस दाढ़ी को कहते हैं, तीसरा कंगा, चौथा कच्छा निकर, और 5वां अपना किरपान खंजर। उसकी तैयारी होती है क्योंकि उनके बाल सर के नहीं मोड़ते, वो उसको सेट करते हैं और सारे खाना तैयार सारे। मैंने कहा फलां वो नहीं आए, ये सो रहे हैं। उठाए जाके, मैंने कहा जाके अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ओ नींद। मैंने कहा सरदार जी उठो। ओ कहने लगे जिंदगी में पहली ऐसी लाजवाब नींद आई है। अच्छा, आपके कराची में जब दरख्त खुश्क हो जाता है, सुना है आप जड़ों को पानी नहीं देते, ऊपर पानी देते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी कोई साइंसी दुनिया बहुत ज्यादा है। नीचे पानी आप नहीं देते, या नीचे पानी देते हैं। पानी जब दरख्त खुश्क होता है तो उसकी जड़ों को पानी दिया जाता है। और आपने अपनी जड़ों को पानी दिया, पांव को तेल लगाया, नाक को तेल लगाया। देखें, एक हिंदू साइंसदान है, वो कहता है जिसके पास अपनी जात के लिए वक्त नहीं उसको जीने का हक नहीं है, मर जाए। फिर सुनिए, जिसके पास अपनी जात के लिए वक्त नहीं उसके पास जीने का हक नहीं है। और मैं कहूंगा अपनी जात के लिए वक्त क्यों निकालें? सुनिए, सेहतमंद होंगे। फरमाया सेहत इसलिए मांगो, आप भी नियत कर ले मेरे साथ। सेहत इसलिए मांगो, या अल्लाह मैं सेहतमंद हो गए, इबादत करके तुझे राजी करूंगा, खिदमत करके तेरी मखलूक को राजी करूंगा। बीमार ना खिदमत कर सके, बीमार ना इबादत कर सके। आप पांव को तेल लगाए। कराची के हंगामे, कराची का शोर शराबा, कराची के अंदर निजाम, कराची में नहीं पूरी दुनिया में यही हाल है। कराची की क्या बात करूं, अंदर के हंगामे, अंदर की तोड़फोड़। अपने जिस्म को वक्त दें, पांव को, पिंडियों को तेल लगाए, सरसों का, नारियल का, रोगन बादाम का, जैतून का, कोई अच्छी तरह मालिश करें खुद। और अगर आप गरीब बनना चाहते हैं, दर दर की ठोकरें खाना चाहते हैं, तो मैं एक टोटका बता देता हूं। जो बनना चाहते हैं फौरन हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4। जिन्होंने हाथ खड़ा किया आशिक दीवाने हैं, इश्क मस्ती में इतने मस्त हैं, आशिक दीवाने हैं, मुखलिस हैं। लुत्फे सजन दम बदम, कहरे सजन कह गा, ईवी सजन वाह वाह, ऊवी सजन वाह वाह। ये वो है जो फक्र चाहता है, गुर्बत चाहता है, बीमारी चाहता है, मसाइल चाहता है, जो चाहता है मेरी गलियां बंद रहे, रास्ते बंद रहे, ठोकरे खाऊं, वो पांव के नाखून बढ़ा है। क्या कर ले? आप अक्सर देखेंगे हाथ के नाखून चूंकि मुआशरे के सामने आते हैं, अक्सर देखेंगे। और मेरे पास किताबों के सबूत हैं इस बात पे कि पांव के नाखून बढ़ाने से क्या नुकसान होते हैं। मेरे पास सबूत हैं इसके, किताबों के मुस्तनद। पांव के नाखूनों पे नजर रखिएगा, हमेशा नजर रखिएगा। ये चलते चलते बात आ गई। और जो चाहता है मेरी नजर, याददाश्त, दिमाग, हाफसा कभी कमजोर ना हो, वो हाथ और पांव के नाखूनों को काट के ना वहां तेल लगा दे अच्छी तरह से। कभी भी नजर, याददाश्त, हाफसा, चेहरे का हुस्न जमाल, खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी। मैंने कहा है कि इजाफी चीज भी करनी, पांव को तेल लगा ले, इंशाअल्लाह ताला नींद, सुकून, सेहन, आसाब, हर चीज बेहतरीन होगी। एक बहुत बड़े दानिशवर ने कहा, सुन लें, एक तरफ लाजवाब शाही खाना पड़ा हो, एक तरफ नींद हो, दोनों में से किसका इंतखाब करोगे? कहा नींद का इंतखाब करूंगा। नींद से मुझे जिंदगी में तोड़ फोड़, नुकसानात खत्म होंगे। ज्यादा खा के बीमार हो सकता हूं, पर नींद जरूरी है। कम से कम 7 घंटे नींद, इससे ज्यादा ना करना, बहुत जरूरी है। थक गए हैं या और कोई मोती पेश कर दूं?
ہیں؟ اچھا، ایک چیز ہے، ایک دعا ضرور پڑھا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، بس اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچا، نعمتوں کے زوال سے۔ میں بیٹوں کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے کہا بیٹو یہ دیکھو یہ جگہ ہے جہاں میں نے اس کی چارپائی دیکھی تھی، چارپائی کے نیچے سوراخ تھا، وہیں سے اجابت پیشاب، اور وہیں سے، اور وہ میں نے اس کا شاہی دور دیکھا تھا، بہت بڑا کک تھا شیف، بہت بڑا، لائنیں لگی ہوتی تھی، اور وہ دیکھ کے گرم دیکھ چلتی دیکھ پہ پاؤں رکھ کے نا بڑے راست بغیر جوتے کے اندر کفگیر مارتا تھا، بہت بڑا شاہی آدمی تھا، پر زوال نعمت ایسا ہوا گلی میں پڑا رہتا تھا، کوئی روٹی دیتا تھا، ہائے پانی کہتا تھا، کوئی پانی نہیں پوچھتا تھا، اور ایک رات سویا، صبح دیکھا تو مرا ہوا تھا، یوں لپیٹ کے چند بندوں نے جنازہ اور مٹی کے سپرد کر دیا۔ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا، نہیں خود دیکھا، میلسی پہاڑی ملتان کے ساتھ میں قبرستان میں گیا، پتا چلا کہ وہ بندہ قبرستان میں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھنگ گھوٹ رہے تھے، وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ملوں کا مالک تھا، اور مجھے دیکھا تعارف ہوا تو رو پڑا، کہنے لگا ملوں کا مالک ہوں، آج زوال نعمت یہ ہے قبرستان میں چھپ کے بیٹھا ہوں، بے بہا دولت تھی، دنیا تھی، میں نے کتنے لوگوں کو، آپ نے کتنے لوگوں کو، میں شارع فیصل کا ایک واقعہ سناؤں جو مجھے 89 میں ملا تھا، 89 نواسی میں، یہاں بلوچ کالونی ہے نا، اس طرف عمراء کے گھر، اس طرف غرباء کے گھر، اب نامعلوم نقشہ کیسا ہے مجھے پتہ نہیں، میں 89 کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مالدار شخص تھا جس کے بحری جہاز تھے اور مال و دولت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ مال و دولت تھی، بحری جہاز تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، لمبا واقعہ ہے، گھر بکنے کا جب وقت آیا تو گھر کا جو کک تھا اس نے گھر لے لیا، بہت بڑا بنگلہ تھا وہ لے لیا اور وہ سارا لٹ گیا۔ سوال کے واقعات کئی لوگوں کے آپ نے دیکھے ہیں، پڑھیں میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، اور اس کے پڑھنے کے 5 اوقات بتاتا ہوں۔ ایک اذان کے بعد، بہت سے سنیے گا، حدیث میں آتا ہے اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، وضو کرنا ضروری نہیں، اگر چاہتے ہیں یہ نعمتیں مجھ سے کبھی نہ لٹیں، دولت، رزق، عزت، صحت، گردے ٹھیک ہیں نعمت، دل ٹھیک کم کر رہا نعمت، جگر نعمت، میدا نعمت، پٹھے نعمت، آنکھیں نعمت، کھانا نعمت، نکل جانا نعمت، بیٹھنا نعمت، پھر بیٹھ کے اٹھنا نعمت، سونا نعمت، پھر سو کے اٹھنا نعمت، لوگ مجھے سلام نعمت، رحمت نعمت، اولاد نعمت، بیٹے نعمت، دنیا کے جتنی بھی نعمت ہے اگر چاہتے ہیں یہ کبھی نہ لٹیں، یا آپ لٹوانا چاہتے ہیں؟ بولیں انشاءاللہ کوئی نہیں چاہتا، انشاءاللہ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو پھر ایک دعا میری یہ درخواست ہے، 5 اوقات میں پڑھیں، اوقات کو ذہن نشین رکھیے گا، اور اوقات بھی وہ ہیں جن کا تعین حدیث میں موجود ہے۔ پہلے دعا ایک دفعہ یاد کرنے کی نیت سے میں آپ پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال، مانا یہ ہے، ٹھیک؟ 5 اوقات۔ پہلا وقت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب دعا اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اذان کی دعا پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، پر یہ دعا پڑھ لیں۔ دوسرا وقت جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ دن کو دے، صبح دے، شام دے، اکثر لوگ کہتے ہیں مرغ کا بانگ دینا صبح یوں ہے دن کو نہیں، اور میں جب مرغ بانگ دیتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے، اس لیے حدیث میں اس کی باقاعدہ دعا ہی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، جب مرغ بانگ دے اس وقت یہ دعا پڑھ لیں، کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، ٹھیک؟ 2 واقعات ہوئے، دو جگہ ہوئی۔ تیسرا فرمائے جب نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے وہاں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ جب مکبر کہتا ہے نا قد قامت الصلاۃ، قد قامت، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، فرمایا جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، اس وقت دل ہی دل میں ایک دفعہ مانگ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ چوتھا والدین کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے،
दुनिया का फर्मा बरदार होगा। रात एक जगह बैठा था मैं, कहने लगे वालिद साहब का खून आता था, खड़ा हो जाता था। वालिद साहब, उनका नाम आरिफ था, कहने लगे वालिद साहब मुझे कहते थे आरिफ, नहीं तुम। कहा बच्चे कहते थे बाबा क्या हुआ, दादा का खून आया। कहा बेटा वालिद का अदब कर करके आपको पुख्तगी हो गई है, अब जहन में वो अदब बैठ गया है। जो वालिदैन के चेहरे को देख के ये दुआ पड़ेगा, क्योंकि वो लम्हा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और मैं तो उस लम्हे में अल्लाह कहता है मकबूल हज का सवाब मिल गया। उस लम्हे में जो बंदा ये देख के पड़ेगा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिक। कितने बंदे हो, कितने हो गए हैं? और आखिरी सुन ले बड़े गौर से, बहुत गौर से सुन ले, बहुत तवज्जो से सुन ले। कभी ना कभी आपको मौका मिले सफर का, कहीं भी, ये कराची में भी आप पल में परदेसी हो जाते हैं परदेसी हो जाते हैं। कहाँ लंबे सफर है कराची के, लाहौर के, बड़े बड़े शहरों के। अल्लाह से कह देंगे अल्लाह मैं मुसाफिर हूँ, अल्लाह मैं परदेशी हूँ। मुसाफिर परदेशी की दुआएं रद्द नहीं होती। मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे ज़वाल नेमत से बचा। अल्लाह ज़वाल नेमत से बचाएगा। और सबसे बड़ा ज़वाल नेमत एक और भी है, आज मेरे पास रिस्क है, मेरी नस्लें मंगती हैं, भिखारी है, मोहताज है। एक और चीज मैं आपकी खिदमत में आज करूंगा, इसको उम्मीद है कि जरूर तवज्जो करेंगे। पर मैं जो औरत अपने सर पर दुपट्टा रखते हुए सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगी, सिर्फ ये लफ्ज़ बस, और एक बात, जो सर पर दुपट्टा रखते हुए ये पढ़ेगी, अल्लाह पाक जल्ल शानुहू आसमान से आने वाली बलाएं, मुसीबतें, आफात, परेशानियां उससे हटाएंगी। एक, नजर बाद उसको नहीं खाएगी कभी। दो, तीसरी, अल्लाह पाक जल्ल शानुहू उसको नुकरानी नहीं बनाएगा, रानी बनाएगा। सिर्फ सर पे दुपट्टा रखते हुए एक बार क्या पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सर पे दुपट्टा रखते हुए सिर्फ एक बार पढ़े। और हैरत अंगेज तौर पर एक और अमल आपकी खिदमत में देता हूं, एक और अमल देता हूं, 7 मस्जिदों का पानी जमा करें। और इसका हवाला देता हूं, मेरे हुजूर जब बीमार हो गए थे 7 कुओं का पानी जमा किया गया था। हाँ, आज आपके पास अगर 7 कुएं हो तो 7 कुओं का पानी जमा करें। अगर 7 कुएं नहीं है तो 7 मस्जिदों का पानी, एक बोतल, एक घूंट उधर में से, एक घूंट उसमें से, एक घूंट उसमें से, एक घूंट उसमें से, और उसके ऊपर, उस पानी के ऊपर, उस पानी के ऊपर सिर्फ 7 बार, सिर्फ 7 बार एक लफ्ज पढ़ना है, या सलाम। कितनी बार, कितनी बार? सिर्फ 7 बार बस, या सलाम, या सलाम पढ़ना है। उस पानी से, उस पे दम नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। उस पानी से नहाना है बढ़ाते हुए। बढ़ाने से मुराद किसी बाल्टी में वो पानी डाल दे जो आपने 7 मस्जिदों का जमा किया है। आपने दिल ही दिल में या सलाम पढ़ लिया, आप उससे नहा लें। दुनिया का कोई मरीज ऐसा है जिसकी मर्ज नहीं जाती, वो चंद बार ये अमल करे, चंद बार ये अमल करे, चंद बार ये अमल करे, मुसलसल करे, चंद बार करे, मर्ज धुल जाती है, बीमारी धुल जाती है, जादू, असरार, बंदिशें, ये चीजें धुल जाती हैं, और ऐसी धुल जाती हैं और ऐसी खत्म हो जाती है। 7 मस्जिदों का पानी, और दिल में सिर्फ पढ़ ले 7 बार या सलाम। और या सलामों का क्या माना है, सुने सुने। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक साहब ऐसे ऐसे थे जैसे उनकी टांगे लकड़ी की हों, बहुत तेज चलते थे, अस्सलाम वालेकुम कहते थे। और देखें हम में से अक्सर सलाम ठीक नहीं करते। बाज़ औक़ात मुझे अपने सलाम पे मुगालता होता है, मैंने भी ठीक नहीं किया। आज के बाद मैं भी सही सलाम करने का सोचूंगा, आप भी सोचेंगे। असल और सही सलाम है अस्सलाम वालेकुम। क्या है? अच्छा, वो सबको ऐसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, हर बंदे को, अपना, दीवाना, बिगाना, कोई भी। 16 साल जिंदगी। मैंने एक दफा उनसे पूछा, मैंने कहा आप हर बंदे को सलाम करते हैं, क्यों करते हैं? अब वो राज सुन लें, जरा गौर से सुन। कहने लगा मेरे ऊपर से ट्रक गुजर गया, टांग में से बच गया, टांगे चूरा चूरा हो गई। कई दिनों के बाद होश आया, मुझसे कहने लगा आप यहाँ दस्तखत करें, आपकी दोनों टांगे काटनी पड़ेंगी, सारी उम्र के लिए टांगे लटकती रहेंगी, खत्म हो चुकी है हर चीज। कहा मैं कभी अपनी टांगे काटने न दूंगा, लटकती रहे लटकने दूंगा, मैं कभी नहीं काटने दूंगा, कभी नहीं काटने दूंगा। कहा मेरी टांगे जख्म ठीक हुए, घर पड़ा रहता था, चींटियां खा जाती थी मेरे जिस्म को, मक्खियां बैठती थी, मुझे पता नहीं चलता था। कई अरसे के बाद एक कोई सियाने जानने वाले आए, कहने लगे तू अपनी जो है व्हील चेयर पर बैठकर दरवाजे के सामने बैठ जा और जो भी आए उसको सलाम कर।
फिर जो राज बताया ना, कहा वो राज जाके दिल को लगा, वो राज आप भी सुन ले। क्या पता कोई खिजर हो, उसने तुझे कहा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तुझ पे सलामती भेजे, और सलामती से मुराद है तेरी टांगें ठीक हो जाए, तेरा जिस्म ठीक हो जाए, और सलामती से मुराद तेरी बीमारियां खत्म हो जाएं, और सलामती से मुराद तुझ पे अजाब ना आए, बलाएं ना आए, डकैती ना पड़े, कत्ल गारत ना हो, हमला ना हो, और तेरी इज्जतों का कोई दुश्मन ना हो, और सलामती से मुराद तुझ पे दुश्मन का, जादू का, जिन्नात का, परेशानियों का, मुश्किलों का, नजर बद का वार ना हो, और सलामती से मुराद कोई हासिल सीना परवर मुंतकिम का तेरे ऊपर कोई दुश्मन का वार। ये सलामती जो तुझे सलामत कर दे, तुझे रहमत दे दे, तुझे अता दे दे, तुझे खुशियां दे दे, तुझे खुशहालियां दे दे, तुझ पे रहमतें निछावर कर दे, और तुझ पे नेमतें हैं तो ना छीने, अताएं हैं तो ना छीने। ये सब सलामती के मफहूम और मानों में चीज आती है। कहा तो ऐसा कर, सलामती कहे, अस्सलाम वालेकुम, सबको कहे, सबको कहे जो गुजरे। कहा मैंने ये कहना शुरू कर दिया। कुछ ही महीने, कुछ ही हफ्तों में मैंने महसूस किया मेरे जिस्म में हल्की हल्की जान आ रही है। अब मक्खी बैठती थी तो एहसास होता था, चूंटी काटती थी तो एहसास होता था। कहा मेरे जिस्म में जान आ रही। मेरे ख्याल आया यहाँ लोग थोड़े आते हैं, आगे चौराहा है, वहां मेरी कुर्सी रख दो। चौराहे में बैठ के मैंने कुर्सी रखी। तकरीबन 9 महीने मैं लोगों को सलाम करता रहा, हत्ता कि एक वक्त आया मैं वॉकर से चलना हुआ, एक वक्त आया बैसाखियों से चलना हुआ, एक वक्त आया अब मेरी चाल को कोई चल नहीं सकता। क्या पता जिसमें आप सलामती भेज रहे हैं वो जब सलामती लौटाता है, वालेकुम अस्सलाम, जब सलामती लौटाता है, क्या पता अल्लाह का कोई महबूब है, कोई गौस है, कोई कलंदर है, कोई नकीब है, कोई नजीब है, कोई अबरार है, कोई वली है, कोई सादिकीन में से है, कोई सालिहीन में से है, कोई आबिदीन में से है। ये कौन है? मेरी आपकी नजरों में, मेरी आपकी नजरों में इस मजमे में बैठने वाला ऐसा बंदा जिनको हम न जाने, न पहचाने, न हाथ मिलाएं, पर फरमाया तुम्हारे कमजोरों की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। कोई ऐसा ज़ईफ, कमजोर, गरीब पे हैसियत बैठा है इस मजमे में, और जब कहते हैं ना आमीन, अल्लाह कहता है फरिश्तों इसकी आमीन को कबूल करो, और इसकी वजह से सारे मजमे की आमीन कबूल करो। क्या बताओ किसी को हम सलाम करें और वो लौटाए आपका जवाब, जब लौटाएगा तो आपका काम बन जाएगा। कहा मेरे सलाम की वजह से आज मैं इतना तेज चलता हूं, टांगे वही है, उल्टी सीधी टांगे, गैर मुतवाजिन टांगे मैंने खुद देखी, गैर मुतवाजिन टांगे। वो चलता था अस्सलाम, मुझे कहने लगा जिस सलाम की वजह से मैं यहां पहुंचा उस सलाम को छोड़ दूं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, अपने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, इतने बड़े मकाम पे पहुंचे हैं, और मैं जिस तस्बीह की वजह से इतने बड़े मकाम पे पहुंचा उस तस्बीह को छोड़ दूं? फिर 7 मस्जिदों का पानी, बात एक चलती है उसमें और पैकेज भी निकल आते हैं, चलो भला हो जाता है। 7 मस्जिदों का पानी, और हर मस्जिद के पानी इकट्ठा कर ले और फिर उसको क्या पढ़े 7 बार, या सलाम दिल में पढ़ ले, उस पर फूके नहीं, और उसके बाद उस पानी से मुसलसल नहाएं। उसी पानी से सारा घर नहा सकता है। 2 घूंट उस बाल्टी में डाल दें, 2 उसमें डाल दें, 2 उसमें डाल दें, उसी एक बोतल को फिर भर के ले आए। ये अमल आपके लिए बहुत महबूब है, ये अमल आपके लिए बहुत लाजवाब है, और इस अमल की आपको बहुत तासीर मिलेगी।